Good morning, all of you. So this is a Zoom session with a select number of candidates who have unfortunately not been able to clear the CFA Level 1 November 21 examinations. So we want to understand as to what went wrong. Number one, it will help them because they would know what went wrong, what do they want to ask. And number two, those of you who are listening to this later on, you can very well relate to some of them and you can understand your areas of improvement. In fact, those who are going to appear for the first time in the Feb examination or May examination, they can also learn a lot. But for all this, you have to show patience. You have to listen to the entire session so that you can gain from it. Okay. I request Sudhir, who is managing, and Prakriti, my colleague, not to allow entry to anybody else henceforth. I think instead of my saying generically about how you should study for the exam and all that, we would be interactive. The result percentage for CFA Level 1 has gone down as compared to historical average of around 40-42%. It has gone down to levels of 25-27%. In November, it was 27%. From an Indian perspective, if we look at this percentage, 25-27%, it's a healthy percentage. I think if 100 people appear for the examination, we expect that in a competitive examination, 25-27 people should pass. There shouldn't be any complaint about it. There might be examinations where out of 100, 60 or 70 people pass. I don't know. You are wanting to appear for such examinations, please research and you may find that there are examinations in which the pass percentage may be 90%. So one can pick and choose those examinations. CFA examinations are very competitive. Okay. And I think if an Indian person looks at the pass percentage 25-27, he should be reasonably okay. Why to look at the time series? I was expecting in November the results that the pass percentage will improve to 35 or 40, but it didn't happen as I had expected. But doesn't matter. I don't look at the statistics for the purpose of determining how should I teach, and you shouldn't look at the statistics for determining how should you study, because one cannot approach an examination with a lot of intimidation that no, I can't pass because the percentage is this or that. Okay, 27 is a very healthy percentage, and one needs to introspect very, very clearly as to why we did not pass. Now, before we begin the discussion, when the results are declared for the CFA Institute, in that case, there is a page in which we have the overall results. There's a minimum passing score. Anybody who doesn't pass was obviously below the minimum passing score, whether he was slightly below or too much below. That is something that the subjective eye can see. And then in the second page, individual topics, whether you scored 50% or 70%, or you scored above 70 or below 50, individual topic wise it's shown. So those are the two things that can be looked upon to understand your results. I have seen what if a student has say secured less than 50 or around about 50 in many topics, and suppose in 2 or 3 topics he has scored around 70. So that student is trying to see that, okay, I scored 70 over here, still I did not pass. The point is that the world has scored above 70 in most of the topics. So you are comparing your 2 or 3 topics with your 50 or below 50 topics, but the world is comparing you with others. Okay. So I'll speak more about it towards the closing session when I listen to students and I'm summarizing my part. But right now, we will interact with students. And if I sound serious, because I am serious, it really hurts me when I find that students who have studied, especially through me, the CFA L1 examinations, they are not able to pass. I do understand there could have been some family situation, there could have been some personal situation because of which, but in that case, I think examination should not have been appeared. The problem that people commit in CFA is that from here or there, they listen that CFA examinations are easy. I don't know who
transmits this misinformation. Okay, and accordingly they take a target of appearing after 3 months or appearing after 4 months, and then when the entire thing is there, they find that they're not able to manage, they're not able to cover up everything. When I say everything, I mean to say, number one, there should have been an understanding of each and every chapter. The understanding can be via my classes, via reading the core, via reading some other Quasar or whatever material. There has to be an understanding of each chapter. You have some prior understanding, okay, you can straight away look at the notes. Then there has to be practice of the questions via the core, the end of the chapter questions, and the candidate resources. These two are bare minimum, if not SSCI book. The third is one has to, throughout the process, have queries and ask doubts on Q Forum. And fourth is one has to take mock tests of Q Forum as well as the mock test designed with the CFA Institute. Now, these are quintessential things. Okay, if any chapter, any topic is not done well, you have not understood the topic and straight away you're sitting for the exam, you have not revised the topic, okay, revision classes also there, you have not done the same, you have not taken mock test, you have not used Q Forum for the purpose of doubt resolution. So these are loopholes, okay, and any or all of them will contribute to maybe you're getting less than the minimum passing score. Okay, having said that, let's enter into a one-to-one discussion. Ankush, please unmute yourself. Hello. Yeah, good morning, Ankush. Very good morning, sir. Sir, my name is Ankush Purohit. मैं by profession chartered accountant हूँ. और वैसे तो जो हो गया वो हो गया, पीछे देखने का वैसा कुछ है नहीं. But still I can easily know कि मेरा ये failure attempt क्यों रहा. It was for my first attempt. और इसमें अराउंड 5 या 6 सब्जेक्ट्स में तो मुझे 70+ परसेंटाइल ही मिले हैं, और 2 या 3 में बॉर्डर लाइन 70 आया है. सिर्फ मेरा 2 सब्जेक्ट ऐसा था, 2 टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें मेरा बिलो 50 गया है. उनमें से एक होगा इकोनॉमिक्स? नहीं सर, एक था क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड सेकंड था फिक्स्ड इनकम. इकोनॉमिक्स तो सर मैंने आपके लेक्चर्स और आपके क्लासेस वगैरह को इतना थॉरोली किया था कि वो तो मेरा अच्छा ही था. एक्चुअली सर क्या है, मैं एक जॉब में हूँ, तो एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो उस वजह से कॉन्स मेरा काफी पोर्शन तो रह ही गया था. आप बार बार कहते रहे थे कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, CFA इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, बट स्टिल आई वाज अनफॉर्चुनेट. और तो मेरा क्वांट्स का काफी वाला लास्ट वाला जो एडवांस स्टैट्स का पोर्शन था वो छूट गया था. और आई रियलाइज्ड इन एग्जाम के इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को टेस्ट किया गया है, तो वो थोड़ा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था. एंड फिक्स्ड इनकम सर, इट वाज मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. आपके लेक्चर्स में आपने बार कई दफे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इसमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. मैंने किया भी था, बट वो एग्जाम पॉइंट मतलब एग्जाम में जो जस्ट वो एक प्रेशर होता है, वहां कुछ क्वेश्चंस मेरे से मिस हो गए और वो वाला सब रहा. मेन मैंने खुद इसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट किया. जो मेन इशू मेरे साथ रहा वो यही था सर कि आप बार बार कहते रहे कि आप क्यू फोरम पे वो मॉक टेस्ट वगैरह या आप क्वेश्चन डाउट्स वगैरह करिए. वो एक्चुअली मैं कर ही नहीं पाया. आपके लेक्चर्स फिनिश करने के बाद और आपके क्वेश्चंस करने के बाद और थोड़ा बहुत कैंडिडेट रिसोर्सेज लास्ट के टाइम में जो भी मेरे पास टाइम था, वो मैंने सारा टाइम कैंडिडेट रिसोर्सेज पे ही स्पेंड किया. उसके बाद सर मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि मैं मॉक टेस्ट दे पाता या तो वो सब मेरे से छूट गया. और मैं देख पा रहा हूँ कि एग्जाम का लेवल कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस की टेस्टेबिलिटी है, वो इजीली अपने को यहाँ नहीं मिलता. तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इसके लिए प्रिपेयर करूंगा तो आई विल डेफिनेटली स्पेंड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन Q forum and mock test because that's the only thing that I didn't do. तो सिर्फ वही एक ऐसा पोर्शन था जो also अंकुश जी, शायद आपके लैंग्वेज में जो आपने बोला उससे ये मेरे को इन्फर हुआ कि शायद कैंडिडेट रिसोर्सेज भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था आपका. सर एक्चुअली टॉपिक वाइज गया था. आप हमेशा कहते थे कि एथिक्स वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने कंप्लीट किया था. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट किया था. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डेरिवेटिव वाला पोर्शन वहां थोड़ा छोटा था, वो मैंने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट वो मैंने कंप्लीट किया था. कॉन्स वाला सर दिक्कत ये था कि बीच बीच में वो क्वेश्चन आते थे जो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया था पोर्शन, तो वो मेरा इनकम्प्लीट रह गया. तो वो था. मैं आपको कह रहा हूँ सर, आपके नोट्स के बाद जो भी मेरा टाइम बचा वो मैंने कैंडिडेट रिसोर्सेज पे ही दिया था. तो अंकुश जी क्लियर कट है आपको. तो आपने जो बोला केवल इसमें ऐड करेंगे कि CFA में कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर
ओके, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इनफैक्ट चैप्टर छोड़िए, एलओएस भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। एलओएस भी नहीं छोड़ के जा सकते। नंबर 1, नंबर 2, कैंडिडेट रिसोर्स पूरा होना चाहिए, पूरा, और वो हड़बड़ी से नहीं, जैसे भास्कर के साथ हुआ, नहीं सिर्फ वो मैंने आपकी एडवाइस वर्ड टू वर्ड थॉरोली मतलब फॉलो करी थी। मैं जो आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको भी पढ़ता था, और इनकरेक्ट आंसर था उसको भी पढ़ता था। ये आपके वीडियो लेक्चर्स में क्लियरली था, तो वो तो मैंने बिल्कुल किया था। जो मैंने किया था वो तो बहुत थॉरो ही था। फिक्स्ड इनकम इज अलार्मिंग, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, उसके बाद भी उसका 50 बिलो परसेंटाइल जाना मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर ही है। और क्वांट्स का तो सर बहुत सारा पोर्शन छूट गया था, तो आई कैन नॉट कंप्लेन। वो तो ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू फिगर इट आउट। बट सर वो क्या है, थोड़ा जॉब के साथ और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो एक इशू था। बट वो एक समझ गए। तो आपको तो आपने खुद ही सारा चीज एनालाइज कर लिया है, मतलब यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन एंड यू कैन सी हाउ थिंग्स गो अबाउट। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? जोधपुर राजस्थान सर। ओके, जोधपुर राजस्थान। अभी जोधपुर जाके आया था मैं 10 दिन पहले। आई थिंक आप जो तरीके से सोचे हैं कि मैं अब इस तरीके से करूंगा, उस तरीके से आप मे का एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए। और ऑब्वियस है कि आपने अगर सीएफए ज्वाइन किया जॉब करते हुए, तो यू डेफिनेटली हैड सम प्लानिंग्स इन योर माइंड कि ऐसे ऐसे मेरा सीएफए होगा तो मैं इस तरह से ये भी चीज को ऐड कर पाऊंगा या ट्रांजिट कर पाऊंगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, सो वो सारे प्लान्स को माने दोज प्लान्स शुड ऑलवेज एक्ट एज अ ग्रेट मोटिवेशन इन योर माइंड दैट दे आर स्टिल इंटैक्ट, and that's the reason I did it, and I am not going to be hurt by one particular obviously sir, it's a professional exam. Obviously a failure is always a setback, but ऐसा नहीं है कि छोड़ के कहीं चले जाए। I love the industry, I love the जो भी मैंने आपसे पढ़ा है या जो भी मैं मतलब रिसोर्सेज वगैरह से पढ़ा है, I just love this. फाइनेंस इज समथिंग दैट मैंने जब पहले सीए शुरू किया था, तो पहला ही पेपर जो फाइनेंस का था, मतलब वो बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगा था यार दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू मेक माय करियर इन। तो फाइनेंस को छोड़ने का तो कुछ है ही नहीं। हाँ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, सेटबैक तो है सर, मेरा 6-7 महीना पूरा पीछे चला गया। आई वाज प्लानिंग कि इस बार में अगर मेरा हो जाएगा तो मैं L2 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वो एक है वो एक थोड़ा सा रहता है, कहीं कहीं आपको परेशान करता है। बट 5-7 days I'll start over again and see. पर हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा जो अनसक्सेस रहा है उसका रीजन क्या है। कहीं ना कहीं सर मैं आपसे अपोलोजाइज ही करूंगा, आपकी एडवाइस को मैंने वर्ड बाय वर्ड फॉलो नहीं किया। आप बार बार कहते रहे क्यू फोरम पे आइए, क्यू फोरम पे आइए, बट सर वो जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज क्या लास्ट टाइम जो ये क्यू फोरम पे आने से क्या होता है, ये दिखता है कि क्या अपने प्रिपेयर्ड है क्या एग्जाम के लिए। बिल्कुल सर, उस पे जो डाउट्स रोज आ रहे हैं अपने को, अगर नहीं आते तो दिख रहा है ना कि नहीं आते, दिख रहा है नहीं आ रहे। हाँ, सिंपल है। और अगर डाउट रिप्लाई नहीं भी करना है तो कम से कम मन में तो सोच ले इसका आंसर क्या होगा। हाँ, एटलीस्ट आप अपने खुद के लेवल पे तो प्रिपेयर या प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। या करेक्ट वो तो एक है ही है। एंड द मॉक टेस्ट आल्सो। मॉक टेस्ट तो सर मैंने शायद दिया ही नहीं था। तो वो मैं रिलेट कर सकता हूँ सर, क्योंकि जब मैंने एग्जाम भी दिया था ना, तो जिस तरह के क्वेश्चंस वहां पूछे गए थे, और मतलब जो फिक्स्ड इनकम में मुझे लग रहा था यार मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी। तो अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया होता तो मतलब मुझे पता चल जाता कि यार वहां का लेवल क्या है और अभी मेरी प्रिपरेशन का क्या है, तो कहीं ना कहीं वो गैप मीट आउट हो जाता। बट वो अनफॉर्चुनेट था। और ये ध्यान रखिए कि चेंजेस का अलग से एक मॉड्यूल बनाया हुआ है यूलन पे अभी, चेंजेस वाले पोर्शन का। उसके लिए इंक्वायरी थी सर। मैं आपसे मतलब आपके स्टाफ वगैरह से भी वापस मैं कांटेक्ट करूंगा। बिकॉज़ आप जाके देखेंगे तो यूलन पे जनरल सारे दुनिया के लिए, माने वेदर वो मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, हमारा चेंजेस का एक वो बनाया हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम चेंजेस 22 का कंपेयर टू 21, आपको जाके उसमें एनरोल करना है विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी, एंड सारे चेंजेस आपके पास रहेंगे, सो दैट आपको पता रहेगा कि यार मैं कैबज रिवाइज कर रहा हूँ तो उसमें चेंजेस क्या हुए वो वहां से कर लूँ, वैसे कर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you very much. Thank you. We are moving to Shruti Rajodia. Shruti, please unmute yourself. Good morning, sir. Good morning, Shruti. Sir, actually मेरा क्लियर नहीं हुआ। The reason is very clear कि मैंने Q फोरम के मॉक्स वगैरह सॉल्व नहीं किए, and at the end because टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट था तो मैंने कैंडिडेट रिसोर्सेज भी नहीं कर पाई थी। मैंने क्लासेस जनवरी से स्टार्ट कर दिया था,
बट वो एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम था कि नवंबर में देना है, सो बहुत टाइम में हो जाएगा। एंड बाय द टाइम जब मैंने एनरोल किया, मैंने रजिस्टर किया, तब फिर मैंने पूरा ऐसे ट्रैक पकड़ लिया था कि आई हैव टू डू, अब टाइम एकदम भी नहीं है। एंड आई वाज प्लानिंग अकॉर्डिंगली कि मुझे 2 महीने पहले मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है विद रिविजन, ताकि उसके बाद मैं कैंडिडेट रिसोर्सेज, मॉक्स एंड ये सब में शिफ्ट कर पाऊँ। बट बिकॉज एंड की सितंबर मिड से अक्टूबर मिड तक में मेरे फैमिली में थोड़ा इश्यूज चल रहा था, सो ऑलमोस्ट फॉर द एंटायर मंथ आई कुड नॉट स्टडी प्रॉपर्ली। मतलब हार्डली 1 या 2 क्लास या वैसे हो रहा था। एंड आफ्टर दैट जब अक्टूबर मिड में ये सब सॉल्व हुआ और नवंबर मिड में मेरा एग्जाम था, तो मैं इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी, मेरे क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए थे उस टाइम तक भी। सो आई जस्ट फोकस्ड कि मुझे पहले क्लासेस कंप्लीट करनी है। और नवंबर 1 तक में, एज ऑफ नवंबर 1 आई वाज लाइक मेरे क्लासेस कंप्लीटेड है। एंड जो मेरे फैमिली में भी काफी लोगों ने CFA दिया है लेवल 1, सो उन्होंने बोला कि अब तू कैंडिडेट रिसोर्सेज या मॉक्स पे फोकस मत कर, अभी पहले अपना बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और ताकि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आए, फिर अगर टाइम बचेगा तो उस पे जाना। तो मुझे लगा कि वैसे ही कर लेते, क्योंकि अगर मॉक्स अच्छे नहीं गए कॉन्फिडेंस और ब्रेक हो जाएगा। एंड अब शिफ्ट भी नहीं कर सकते, अटेम्प्ट की फरवरी में कर लेंगे या वैसा कुछ। सो उस टाइम तक भी मैंने सिर्फ इसी पे फोकस किया कि बस मेरा मॉक्स तो नहीं हो पाएगा, आई मीन मेरा बुक का सारा क्वेश्चंस हो जाए, एंड वैसे एटलीस्ट पासिंग जितना तक भी अगर मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। एंड वो लास्ट तक वैसे ही रह गया। उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं मॉक्स कर सकूं और मैं कुछ भी प्रैक्टिस इधर से कर सकूं। सो इसीलिए मेरा पूरा रह गया। एंड इनफैक्ट मेरा एग्जाम काफी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मॉर्निंग सेक्शन मेरा बहुत अच्छा गया था, आफ्टरनून सेक्शन भी थोड़ा खराब था, FR एंड FI में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं क्लियर तो कर ही जाऊंगी। इतना तो था ही कि अगर परसेंटाइल भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाई तो मैं क्लियर तो एटलीस्ट कर जाऊंगी। तो और अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन एग्जामिनेशंस जो होते हैं ना, उसमें अपने इस तरह का स्टेटमेंट पास करते हैं कि भाई अच्छा मार्क्स नहीं आए तो कम से कम पास तो हो जाए। तो आपके तरफ से ये स्टेटमेंट अभी यूज हुआ, जबकि CFA एग्जामिनेशन में इट इज अबाउट पासिंग। माने CFA एग्जामिनेशन में तभी तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ स्टूडेंट हु पासेस मिनिमम पासिंग स्कोर के जस्ट ऊपर या मिनिमम पासिंग स्कोर से बहुत ज्यादा ऊपर। इंडिविजुअली बंदे को कॉन्फिडेंट होता है वो अलग बात है, बट इंडस्ट्री एक्सेप्ट्स एवरी पर्सन एज अ पास। सो आई थिंक वो चीज तो आप मन से निकाल दीजिए कि रिगार्डिंग मेरे को केवल पास तो कम से कम हो जाऊं। पास तो कम से कम होने के लिए ही तो सारा एफर्ट लग रहा है। मैंने पास होना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। इट इज नॉट लाइक इंडियन एग्जामिनेशन होता है ना, हम लोग इस पे पास हो गए CA फाइनल में और मेरा पास हो गया, रैंक नहीं आया, तो ये सब नहीं है। CFA में पास होना मतलब रैंक आना। ओके, यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नोबडी हु इज अबव यू। तो ये मेंटालिटी लेगी। सेकेंडली देखिए, अल्टीमेटली जाके मैंने आपने जो बोला कि कैंडिडेट रिसोर्सेज और क्यू फोरम नहीं किए थे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो लास्ट में रश आ जाता है ना अक्टूबर से, कि 10 अक्टूबर आ गया, एग्जाम अब 1 महीना बाद है और अपना बहुत कुछ नहीं हुआ है और अपने रश करके हड़बड़ी से कर रहे हैं, ये जो हड़बड़ी वाला चीज है ये CFA में मतलब पता नहीं एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। तो अभी आप जब आगे प्लान कर रहे हैं इस साल का, तो आपको ये क्लियरली, जैसे आप एक चीज समझिएगा, आप अगर अगस्त में भी CFA L1 देते हैं जो कि अर्ली बर्ड के अंदर आएगा, तो आपका लेवल 2 फेब 2023 में ड्यू होगा। ठीक है, पर ये जरूर है कि आज अगर आपका लेवल 2 ड्यू होता है फेब में, तो आपको अगस्त में जो एग्जाम देना है CFA L1 का, वो इतने बढ़िया से देना पड़ेगा जिससे आप लेवल 2 का तैयारी रिजल्ट के पहले प्रोविजनली स्टार्ट कर सके अगस्त के एग्जामिनेशन के बाद। दैट इज वन आउटकम। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट नहीं, मई में CFA L1 देते हैं, रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर लेवल 2 स्टार्ट करेंगे फेब के लिए। तो एनीवेज मई या अगस्त, ये आप ठीक से चुनिएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि रिगार्डिंग अभी जैसे जनवरी का मिड हो गया, ठीक है, स्टार्ट करने को तो आप तुरंत अभी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपके सारे नोट्स फोट सारी चीज है आपके पास एंड यू कैन स्टार्ट। सो मिड जैन में खड़े हैं अपने, अगर मई में एग्जाम देते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं फेब एंड तक या मिड मार्च तक पूरा का पूरा करिकुलम कंप्लीट कर लूंगी अलोंग विद कैंडिडेट रिसोर्सेज एंड अलोंग विद बीइंग एक्टिव ऑन क्यू फोरम। और मिड मार्च के बाद मैं मॉक टेस्ट के पीछे लगूंगी, और जहां पे मेरे को पता चलेगा कि मेरा लोगों से खराब मार्क्स आ रहा है, परसेंटाइल बढ़िया नहीं आ रहा है, वहां पे फिर से फोकस करती रहूंगी।
तो अगर आपके लाइफ में और कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, आप कंप्लीटली डेडिकेटेड है मेंटली एज वेल एज सिचुएशनली, तो आपको मई चुनना चाहिए और तुरंत प्रेपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं तो आपको अगस्त चुनना चाहिए, पर वो गलती मत कर दीजिएगा लास्ट ईयर हो गया कि जब जैन में खड़े थे और नवंबर में था तो बहुत दूर है, तो कहीं अगस्त में चुनेंगे और सोचेंगे अभी तो अगस्त बहुत दूर है, अभी तो मैंने तो मई थोड़ी चुना है। तो आई थिंक दैट साइकोलॉजी शुड नॉट बी देयर। ठीक है, आपको स्टार्ट तो अभी से ही करना है, प्रिपेयर करना। सर एक्चुअली मुझे दिसंबर मिड में रियलाइज हो गया था कि ये क्लियर नहीं होगा, बिकॉज मैंने अपना प्रिपरेशन खुद देख लिया था। उसके बाद जब मुझे थोड़ा टाइम मिला सोचने का, तो मैंने प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर दिया था। बट अभी ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मई में दूं या अगस्त में, बिकॉज वही पॉइंट मेरा भी था कि अगस्त के लिए मैं फिर बहुत लाइटली ले लूंगी कि अभी तो बहुत टाइम है। वही डर लग रहा है मेरे को। और मेरे को ऐसा बात करते हुए आपसे लग रहा है कि अगर आप मई को चुनते हैं तो आपको लाइक ऐसा होगा कि आपके एकदम पूरा माने यू नो दैट कोई और चीज नहीं है, मेरे को इसी फोकस करना है। ठीक है, और मेरे को वापस से गड़बड़ नहीं चाहिए। तो मेरे को तो लगता है उस सेंस में आप मई को ही लीजिए, जिससे आपका साइकोलॉजी संभले। ये सब, बट मेरे को ये लग रहा है कि इतना सारा है कैंडिडेट रिसोर्सेज, मॉक्स से थोड़ा चेंजेस भी आया है, तो अगर मई तक भी कंप्लीट नहीं कर पाई, मतलब ऐसा तो है कि मई तक में अभी टाइम नहीं है, तो मुझे अभी से पूरा ही लगना पड़ेगा, जितना मैं अभी 1 महीने से कर रही हूँ और ज्यादा करना पड़ेगा। बट जस्ट इन केस, क्योंकि अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो चुका है। ये जो कट ऑफ डेट है ना मई के लिए, अगस्त के लिए जो अर्ली, वो 8 फेब है शायद, है ना? और अपने खड़े हैं अभी 15 जैन में। ठीक है, तो आपका जो माने जो टॉपिक या जो टॉपिक्स आपको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फेस हुआ है 10 में से, ठीक है, सीएफए में, आप एक काम कीजिए ना, आप एक बार उनको पढ़ना चालू कीजिए, उन 2 टॉपिक्स को या उन एक टॉपिक को, और उस टॉपिक का पूरा कंप्लीट, उस टॉपिक का क्वेश्चंस, उस टॉपिक का कैंडिडेट रिसोर्स। ठीक है, उस टॉपिक में देखिए कि आपका 5 फेब तक कितना कंप्लीट होता है, आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं क्या? अगर आपके वो 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक, आई डोंट नो कितने टॉपिक्स पे आप रियली डरते हैं, वो टॉपिक्स अगर आपके हो जाते हैं 5 फेब तक, तो आप उस केस में मई का भर दीजिए। और अगर वो टॉपिक ठीक से नहीं होते हैं तो आप अगस्त का भरिए। सिंपल डिसीजन है। ओके सर, अब मैं एक्चुअली सोच रही थी अभी जॉब के लिए भी, वो तो मुझको अभी ड्रॉप करना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं, जॉब में अगर मैं फंस गई तो जॉब का आपको अभी नहीं सोचना चाहिए। एक बार लेवल 1 को सल्टा लेते हैं, फिर अपने देखेंगे उस डायरेक्शन में। कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए। सर मेरे को ये भी लग रहा है कि लेवल 1 एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो वो आगे जाके एज इट इज मेरे वैसा सीवी कुछ पे। नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीएफए में जैसे बहुत अपने इंडिया में खासकर ट्रेंड आ गया है कि लोग पोस्ट करते हैं गॉट 90 परसेंटाइल इन ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, ये ट्रेंड इंडिया के बाहर है भी नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं इंडियंस को क्यों अपने आप को एक्सक्लूसिव और डिफरेंशिएटेड दिखाने में मजा आता है। ठीक है, हम लोग ही मना नहीं करते बिकॉज लगता है कि उसको साइकोलॉजिकली हर्ट हो जाएगा। वैसे ही आप एक बार में निकले हैं या 2 बार में निकले हैं, उससे इंडस्ट्री को कोई मतलब नहीं है, चीप मेंटालिटी वाले लोगों को छोड़ के। बिकॉज अगर आप निकल गए हैं सीएफए, इसका मतलब आप में वो नॉलेज डोमेन है, वरना आप निकलते नहीं। तो आप ये सब जो ला रहे हैं ना मन में, और बहुत सारा इंडियन हैंगओवर्स आपके मन में आया हुआ है, तो आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ इट। ठीक है ना? यस, थैंक एंड यू सर। आई वुड टेल ऑल ऑफ यू, मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ कि आप में से जो भी जन तुरंत एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाला है, जोर से प्रिपेयर कर रहा है और प्रिपेयर करने वाला है, और वो पर्सन का ये मन करता है कि काश मैं थोड़े सर से क्लोज रहता या रहती और मेरा सर परफॉर्मेंस मॉनिटर कर पाते, तो इन दैट केस उसका एक ही तरीका है, एंड वो तरीका ये है कि आप प्रकृति जी को व्हाट्सएप करके क्यू फोरम के मॉडरेटर ग्रुप में शामिल होइए, और उसमें आप रोज रिप्लाई कीजिए पढ़ के, एंड यू विल फाइंड दैट डेली आप मेरे साथ एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, दैट्स द ओनली वे दैट आई कैन बी 1-to-1 कनेक्टेड विथ यू। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके श्रुति, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू Sir, can I add in something just for 2 minutes? Yeah, definitely. After having interacted with all these candidates, एक undertone मेरे को समझ में आया कि what is it that all of these candidates who stumbled, कहाँ पे इन लोग जाकर के लैग कर रहे हैं? There are 3 golden words that you use in your classes: questions, questions and questions. And जितने भी candidates से अपने बात किए हैं, somewhere down the line, when they introspect, they will know कि वो कहाँ लैग कर रहे थे। वो questions नहीं practice कर रहे थे। They did 500-550 hours of classes, but when it came to questions, वहाँ तक जाते जाते शायद उनका time over हो गया होगा. They had some personal problems. They were busy with job. And the second thing that I've observed over here is this, that when faced with a time crunch,
most of the candidates shy away from taking a mock exam. They think, let me first complete my syllabus, let me first complete my lectures, and maybe if I get time, then I will try it towards the end, maybe 3 or 4 days or 5 days before the examination. And is chakkar mein some of them even skip taking a mock exam. As Gagan mentioned in the last conversation, he was carrying a certain psychology that he's not well prepared, and if he takes a mock exam and does not score well on it, it might shake his confidence. Now this, sir, I personally believe is a rookie mistake. Mock exams are not about scoring the highest percentile. It is about getting exposed to 180 new questions that are exam representative, right? You get a feel of the examination, you get an idea of what kind of stamina is required to sustain through those 6-7 hours on that one fateful day that will decide your success on the examination. This is not like a CA examination that there are 6 or 8 papers, ek din acha nahi gaya to acha theek hai main next day संभाल लूंगी. That's not going to happen. So एक simulated environment में to get a feel of the exam, it's very important to take the mock exams. Of course आपको अपने psychology को संभालना पड़ेगा that if I don't score well, I will look at it positively, that मेरे को कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है, मेरे को क्या री-स्ट्रैटेजाइज करना है, राइट? Last day when we were in conversation with the achievers of level 1 November examinations, many students who have scored in the top 10 percentile, there were many who scored probably a 70th or a 80th rank on the Q4 mock exam, but still they have scored 90th percentile on the official exams. So what does this tell us? It is basically just an indication that before actually driving the car, एक बार trial तो लेना चाहिए ना हम लोगों को. So this is something that everybody needs to focus upon. That एग्ज़ाम में बैठने के पहले you have to take a mock exam. Now I am not saying that आपको कहाँ से लेना चाहिए. CFA इंस्टीट्यूट का तो डेफिनेटली मस्ट है, यू शुड टेक इट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ एनी थर्ड पार्टी वेंडर्स, यू कैन ट्राई Q4, यू कैन ट्राई स्क्वाइजर. देर आर एग्जाम्स फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स. आप कहीं से भी लें, इट डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज दैट before, I mean, we invest so much of time and energy into this one examination, that one day that will decide your success rate. Then why not should we sit and analyze ourselves through mock exams? मतलब एक बार उसका फीडर दे के जाना चाहिए. So what is your thought about the same? I feel that number one, it is necessary to ensure that हर एक चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग है. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसके बिना क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो स्टुपिडिटी. तो अंडरस्टैंडिंग सबसे मेन तो क्लासेस के थ्रू आता है, और अगर ऑलरेडी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक का, तो क्लासेस नहीं भी करे तो रिवीजन क्लासेस या स्क्वाइजर वगैरह रीड करके हो जाता है. बट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट. बट देन ये जो स्टूडेंट्स है, खासकर बॉर्डर लाइन वाले, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं था. इनके साथ प्रॉब्लम जो था वो ये कि अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नेसेसरी. अंडरस्टैंडिंग को शार्पन करना पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिशन इज टफ. और वो शार्पनिंग जो है, इट हैपेंस इफ यू आर active on Q forum, you are seeing what doubts are posted and feeling that do I know these or not. ठीक है. प्लस आपका खुद का डाउट्स है जो आपको पोस्ट करना पड़ेगा. आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा Q फोरम में, और आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा CFA इंस्टीट्यूट का. इनफैक्ट मॉक टेस्ट कहीं और से मिलता है, जैसे स्क्वाइजर का 2 बुक्स आता है, वहां का मॉक टेस्ट है, वो भी देना चाहिए. तो मॉक टेस्ट शुड बी द थिंग. मतलब लास्ट के 1 मंथ तो एवरी डे मॉक टेस्ट होना चाहिए. हो सकता है एवरी डे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, इफ नॉट, ठीक है, तो आप हो सकता 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट आपको मॉक टेस्ट लास्ट के 1 मंथ में होना चाहिए. क्यू फोरम का स्पेशलिटी ये है कि मॉक टेस्ट में एनालिटिक्स इतना बढ़िया है ना कि यू आर एबल टू सी कि बाकी लोग के मुकाबले मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं. ठीक है. बिकॉज अदरवाइज तो आप अपने में हो, हाँ मेरा अच्छा ही जा रहा है, तो यू आर मोर इन अ सीए मेंटालिटी और इन इंडियन मेंटालिटी, एंड ये इंडियन मेंटालिटी से CFA एग्जामिनेशन प्रोफेशनली हैंडल होता नहीं है. तो आई थिंक it is time that everybody uses the Q forum platform aggressively for the purpose of creating that edge, which is the difference between a borderline case versus clearing out. वो difference वहीं पे आ जाता है. और कोई borderline से बहुत नीचे है, इसका मतलब तो उसका preparation ही खराब है, उसको overall pull करना पड़ेगा. Right. Okay, so let's hope that this was beneficial. Okay, we will share portions of it on YouTube also, which will benefit audiences. And all the best to everybody who is appearing the examination in Feb and who would be preparing for me. Thank you.